regards from Arya Institute of English Medium. We are going to start with one new chapter of a science. मैंने आपको पहले ही बताया था देर आर ए टोटल मेन 4 पार्ट्स ऑफ द साइंस. उसके अंदर फर्स्ट पार्ट दैट इज रिलेवेंट टू दी फिजिक्स, सेकेंड गोज फॉर ए केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एंड one is called as an environmental chemistry. Environmental chemistry we are going to deal where we are really able to help it out to the people. तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो मेन स्टैंडर्ड 9th में जो पढ़े थे उसी के पैरेलल या उससे आगे स्टडी करने के लिए ट्राई करेंगे. वन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी. इन 9th we learn about the total energy during a physical or a chemical process is a conserved. Why they do we hear so much about the energy crisis? एनर्जी का सबसे बड़ा शॉर्टेज बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट, न्यूअर एंड न्यूअर डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी. इट नीड्स इन ए ट्रिमेंडस अमाउंट. अगर हम घर के अंदर ही बात कर दें तो मैक्सिमम प्रपोर्शन ऑफ द एनर्जी विच हैज़ बीन यूज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी आर यूजिंग इन दैट ए माइक्रोवेव ओवन से लेके एयर कंडीशन and a plenty of the other small as well as big instrument which we are using is also working on electricity. तो एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में जब कन्वर्ट करते हैं तो उसके पहले हमें मेन सोर्स के बारे में जानना रहता है. हियर वी आर गोइंग टू ट्राई टू गेट द इंफॉर्मेशन pertaining to that, and at the same time हमें जो रिसोर्स चाहिए वो कैसा होना चाहिए. दैट शुड बी ए क्लीन and it should create a minimum pollution to the nature. Now if energy can neither be created or nor destroyed, so we should have no worry. So we should be able to perform a endless activity without thinking about the energy resource. This riddle can be solved if you recall. Else we learn about the energy. So energy comes in a different form, and one form can be converted to another. If we drop a plate from a height, एक बड़े से हाइट पे लेके जाके अगर मैं एक प्लेट नीचे गिराता हूँ, बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, when it falls it is going to produce a huge amount of sound. The potential energy of the plate is converted to mostly to the sound energy when it hits the ground. If we light a candle, then during a combustion it is going to produce a exothermic reaction बोला जाएगा, so that chemical energy in the wax converted a heat energy along with it is going to give you a light energy. तो दो फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया. वन इज relevant to the heat, another one is relevant to the light. What other products are obtained when we burn a candle? The total energy during a physical or a chemical process remains the same, but suppose we consider the burning candle again. वापस से अगर वो करना है, can we of the reaction to get back the chemical energy to the form of a wax? वापस से wax हमें नहीं मिल सकता. We cannot get the wax once again. Now let us consider one another example. 100 ml का पानी में लेता हूँ और उसका टेम्परेचर में 348 केल्विन ये SI यूनिट है. सो वी हैव टू रिमेंबर इन फॉर्म ऑफ ए केल्विन. डिग्री सेल्सियस कंसीडर करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट जो वैल्यू दी है दैट हैज़ बीन ए 0 अगर कंसीडर करना है तो 273 केल्विन इज इक्वल टू हाउ मच, 0 डिग्री सेल्सियस. तो आपको इसी के हिसाब से कन्वर्ट करना है. अगर 273 प्लस 75 करोगे you will get a 348 Kelvin. So that you will learn in a next part of the chemistry, and here we will remember all the unit in the form of a Kelvin only. तो टेम्परेचर अगर 298 केल्विन पे लेके जाते हैं रूम के अंदर थोड़े टाइम के बाद, तो व्हाट इज़ गोइंग टू बी हैपन, तो जो एनर्जी थी वो धीरे धीरे लॉस हुई. लेकिन लॉस कहाँ हुई, इट इज़ गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्म इनटू द एटमॉस्फियर. आज सराउंडिंग के एटमॉस्फियर में वो हीट लॉस हुई होगी. लेकिन जो लॉस हुई वो एनर्जी हम वापस से रिकलेक्ट नहीं कर सकते. वो पानी वापस से गर्म अपने आप नहीं हो सकता जब तक हम उसको एक्सटर्नल एनर्जी नहीं देते. मेकिंग देम वाटर हॉट वंस इफ इट हैज़ बीन कूल डाउन. इन एन एग्जाम्पल व्हाट वी कंसिडर वी विल सी दैट एनर्जी it is a usable form, so dissipated to the surrounding in a less usable forms. Hence any sources of the energy we use to do work is a consumed and cannot be used again. तो एक बार अगर यूज़ कर लिया और उसको हम वापस से यूज़ ना कर सके
तो कंज्यूम्ड हो जाता है, यानी यूज हो गया। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो है, तो वी आर कन्वर्टिंग, सपोज आई एम स्टार्ट माई दैट ए माइक्रोवेव ओवन, तो हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगा, वेवलेंथ के अंदर कन्वर्ट करके वो हीट प्रोवाइड करता है। तो हीट के अंदर जब कन्वर्ट हो गया तो वी कैन नॉट यूटिलाइज दैट वंस अगेन, या उसको वापस से कन्वर्ट नहीं कर सकते। सपोज मैंने इस्त्री स्टार्ट की, तो इलेक्ट्रिसिटी गेट कन्वर्टेड इनटू ए हीट एनर्जी आयरन करने के लिए। आफ्टर दैट दैट हीट एनर्जी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू ए इलेक्ट्रिसिटी, वापस से उसका रिवर्सिबल प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। तो कंटिन्यूसली जो यूज़ हो रहा है, तो उसको कैसे जुडिशियसली यूज़ करना, उसके बारे में जानना है। व्हाट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ द एनर्जी? सो व्हाट कैन द कंसिडर्ड ए गुड सोर्स ऑफ द एनर्जी? इन डेली लाइफ वी यूज़ energy from a various source from doing work. We use a diesel to run our train, electricity to light our street lamp, or we use energy in our muscles to cycle to the school. तो स्कूल जाने के लिए अगर मैंने पैडल लगाना पड़ता है ना, तो पैडल इज मस्कुलर एनर्जी यूटिलाइज हुआ, यू हैड रीच अप टू द स्कूल। तो वो एनर्जी के वजह से आप एक वर्क कर पाते हैं, उसका रिवर्सिबल कई बार पॉसिबल नहीं है। Here list 4 forms of the energy that use from morning when you wake up till you reach to the school. अब बहुत सारी इसके अंदर अलग अलग एनर्जी आप यूज़ करते हो। From where do we get the different form of the energy? आपकी मम्मी आपको चाय बना के देती है, during that she is using a gas. तो गैस के अंदर जो गैस है उसका कंबशन किया जाता है, that is also a form of energy. You are doing iron to your clothes, that is also a one of the form of the energy. Can we call this source of the energy? Why or why not? Yes, they all are source of energy. But कई बार हम उसे सोर्स नहीं बोलते, क्योंकि वो हमने जो कहाँ से मिला उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है। एक सिंपल एग्जांपल दे दूँ, सपोज यू आर नॉट टेकन ए फूड फॉर मोर देन 5 days, तो क्या हो जाएगा? यू विल फील ए वीकनेस। वाई? बिकॉज आपके अंदर इंटरनल एनर्जी के अंदर जो कन्वर्जन होना चाहिए वो कम हो रहा है। जो फूड हम खाते हैं उसका भी एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होता है, एंड यू आर एबल टू परफॉर्म योर डे टू डे एक्टिविटी। नाउ लेट अस सी अबाउट द नेक्स्ट पार्ट, द मस्कुलर एनर्जी फॉर कैरिंग आउट ए फिजिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर रनिंग ए वेरियस अप्लायंसेस, chemical energy for cooking food or running a vehicle, all comes from some sources. So we need to know how we select the source needed for obtaining the energy in its usable form. तो हम उसको कैसे कौन से फॉर्म में यूज़ करना चाहते हैं उसके अंदर हम कन्वर्ट करने के लिए ट्राई करते हैं। ये जो सारा चैप्टर्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको दिखा जाएगा कि ह्यूमन बीइंग हैज़ अ ट्राइड इज लेवल बेस्ड। वो अपने कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए उसने एनर्जी के सोर्सेज डेवलप किए हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट बाय नोइंग और अननोइंगली हैड डैमेज द इन्वायरमेंट और नेचर। तो कुदरत को बहुत ही बड़ा नुकसान कर चुका है। कंसिडर द वेरियस ऑप्शन वी हैव व्हेन वी चूज ए फ्यूल फॉर ए कुकिंग आवर फूड। व्हाट ऑफ द क्राइटेरिया यू वुड कंसिडर फॉर ट्राइंग टू कैटेगराइज समथिंग एज एन गुड फ्यूल? What your choice be different if you live in a forest? अगर मैं जंगल में रहता हूँ तो मैं क्या यूज़ करूँगा? वहाँ की जो सूखी लकड़ी है उसको जला के मैं अपना खाना प्रिपेयर करने के लिए यूज़ करूँगा। इन ए रिमोट माउंटेन विलेज और ए स्मॉल इसलैंड, अगर मैं कोई रिमोट एरिया में रहता हूँ या छोटे से माइक्रो इंटीरियर में रहता हूँ, तो वहाँ पे जहाँ पे भी लाइट नहीं होगी, आई विल ट्राई टू यूज़ एज काऊ डंग का दैट उपला जो बना के यूज़ करते हैं, वो टाइप का एनर्जी यूज़ करने के लिए ट्राई करूँगा। या तो मैं टोटली डिपेंड हो जाऊँगा नेचर के ऊपर, कुदरत के ऊपर, जहाँ पे भी आइदर आई विल ट्राई टू ईट दैट फूड, थोड़ा भी जो है उसको थोड़ा बॉईल करके या वो करके मैं खाने के लिए ट्राई करूँगा। इन न्यू दिल्ली देन आई एम गोइंग टू रिसाइड इन अ होटल, आई एम गोइंग टू गेट ए कुक्ड फूड एंड आई एम गोइंग टू इन्जॉय। लिव्ड 5 centuries एगो, 5 साल पहले अगर मैं रहता तो शायद जो अभी आप आपके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बात करेंगे तो दे विल टेल कि दे वाज टू यूज ए केरोसिन एज एन फ्यूल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड इन अ सिटी, एंड इन विलेज दे वाज टू यूज ए काऊ डंग और दैट ड्राई
वुड के जो स्टिक्स होते थे, लकड़ियाँ थे, वो यूज़ करते थे। हाउ आर द फैक्टर्स डिफरेंट इन ईच केस? हर एक केस में आप देखोगे ना तो सब जगह जो यूज़ कर रहे हैं उसकी कैटेगरी बदलती जाती है। जो सिस्टम है उसके हिसाब से हम अपने आप को मॉडिफाई करते रहते हैं, बदलाव लाते रहते हैं। आफ्टर गोइंग थ्रू द टू एक्टिविटीज अबोव, we can see that a particular source of the energy or a fuel we select for performing some work depends on a many different factors. For example, while selecting a fuel, we would ask ourselves the following question. तो ये आपका VSQ बन जाता है 1 मार्क का। एक, हाउ मच हीट डज इट रिलीज ऑन बर्निंग, तो जलने पे कितनी हीट दे सकता है। सेकेंड, डज इट प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ स्मोक, धुआं ज़्यादा निकाल रहा है या कम निकाल रहा है, तो धुआं जो है वो क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट, तो वेस्टेज ज़्यादा है कि कम है वो। तीसरा, इट इज़ इजीली अवेलेबल है कि नहीं, दैट इज़ ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये 3 चीज़ें हमें याद रखनी है कि एक, कि कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, सेकेंड, वो बाई प्रोडक्ट क्या बनाता है, और तीसरा, हाउ मच इजीली इट इज़ अवेलेबल। नाउ can you think of the 3 more relevant questions to ask about a fuel? Give the range of the fuels we have today. What are the factors which would limit our choices when it comes to a particular task like a cooking our food? Would the fuel selected also depend on the work to be done? काम करने के लिए जो फ्यूल चाहिए तो उसके पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, वुड वी चूज वन फ्यूल फॉर कुकिंग एंड अनदर फॉर हीटिंग द रूम इन विंटर। एक जो होता है वो खाना पकाने के लिए यूज़ करते हैं, तो खाना पकाने के लिए कावडंग या लकड़ी हमने यूज़ कर ली। और अगर मुझे रूम के अंदर विंटर के अंदर हीटिंग करना है तो आई कैन नॉट यूज़ दैट कावडंग बिकॉज इट इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस ए स्मोक। अगर मैं लकड़ी भी जलाता हूँ तो उससे भी स्मोक प्रोड्यूस होगा। सो आई हैव टू गो फॉर वन अनदर सोर्स दैट इज़ कॉल्ड एज एन अ कॉल। तो कॉल मैं हीटिंग के लिए यूज़ करूँगा रूम के, बिकॉज वेस्टेज इज़ वेरी लेस, स्मोक कम प्रोड्यूस करेगा, वेस्ट मटेरियल भी कम होगा। सो अकॉर्डिंग टू दैट माई चॉइस गेट्स वेरी, बदलती है ना मेरी चॉइस। सो वी हैव टू से दैट ए गुड सोर्स ऑफ द एनर्जी वुड बी वन, राइट, विच इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ड्यूरिंग द सिलेक्शन। सो विच वुड बी ए डू ए लार्ज अमाउंट ऑफ द वर्क पर यूनिट वॉल्यूम और मास, एक ये बी इजीली एक्सेसिबल हो, ट्रांसपोर्टेशन करना हो एक जगह से दूसरी जगह तो इजी हो, बी इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना इजी हो। एक्सेसिबल होना मतलब वो अच्छी तरह या इजीली उसके इग्निशन टेम्परेचर में कन्वर्ट हो सके। परहैप्स मोस्ट इम्पोर्टेंटली सस्ता भी तो होना चाहिए। अगर मैं सपोज़ खाना पकाने के लिए कोई ऐसी चीज़ यूज़ कर रहा हूँ कि जिससे कॉस्टिंग बढ़ रही है, तो इट इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट मी ना ह्यूज वे। नाउ इसके अंदर जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा काम के है। उसमें एक क्वेश्चन है, डिफाइन ए गुड फ्यूल और राइट ए गुड सोर्स ऑफ द एनर्जी। ये दोनों के आंसर ऑलमोस्ट सेम हो जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन की पैटर्न चेंज की जाती है, तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। सो आंसर क्या आएगा, इज दिस। और एक आगे जो आपको बता दिया कि व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द आइडियल फ्लूइड, मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये 2 क्वेश्चन आपके मेन हो जाते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी ए कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में सबसे पहले आता है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्या हुआ, फॉसिल मतलब तो अवशेष हो गए, डेड बॉडीज जो पुराने सदियों से कहीं ज़मीन के अंदर डिग किए गए हो या पड़े हो। इन एंशियंट टाइम वुड एज द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। द एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग वाटर एंड विंड वॉज ऑल्सो यूज फॉर ए लिमिटेड एक्टिविटीज़। Can you think of some of these usages? The exploitation of the coal as a source of energy made the industrial revolution possible. Increasing a industrialization has led to a better quality of life all over the world. It has also caused the global damage to the energy to grow
एट द ट्रिमेंडस रेट। तो ग्लोबल डिमांड एनर्जी की कंटिन्यूसली बढ़ती गई। द ग्रोइंग डिमांड फॉर द एनर्जी वॉज लार्जली मीट बाय नंबर 1, जहाँ सबसे पहले नजर गई वो था फॉसिल फ्यूल। तो फॉसिल फ्यूल के अंदर दो पार्ट आते हैं, वन इज़ अ सॉलिड फॉर्म, अनदर वन इज कॉल्ड एज अ लिक्विड फॉर्म। अभी तीसरे एक फॉर्म का भी इन्वेंशन हो चुका है, दैट इज कॉल्ड एज गैसियस। सॉलिड के अंदर आएगा कॉल, लिक्विड के अंदर आएगा पेट्रोलियम, दैट इज कॉल्ड एज क्रूड ऑयल ऑल्सो, और तीसरा आएगा दैट इज गैसियस फॉर्म, दैट इज अ मीथेन और मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ये कार्बन की 4 तक की पेयर है विच इज़ अवेलेबल इन गैसियस फॉर्म। Our technology was also developed by using these energy sources, but these fuels were formed over a millions of the years. इसको बनते बनते ही बहुत ही ज़्यादा समय लग जाता है, and there are only limited reserves। तो ये आप देखेंगे तो अरब कंट्रीज़ में और ऐसे में ही मिलते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट ये हमें लिमिट अच्छी तरह से जुडिशियसली यूज़ नहीं करेंगे, देन इट इज़ गोइंग टू क्रिएट ए प्रॉब्लम। तो रिजर्वियर्स जब लिमिटेड हो कि हमें पता है कि आफ्टर 13 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स और 40 ईयर्स और 80 ईयर्स में अगर ख़त्म हो रहा है तो हमें उससे जुडिशियसली यूज़ करना है। तो फॉसिल फ्यूल आर डैश टाइप ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज़ कॉल्ड एज नॉन रीन्यूएबल। ये एक बार हमने यूज़ कर लिया तो वापस से यूज़ नहीं होता। सपोज पेट्रोल, तो अगर मैं व्हीकल में 1 या 2 लीटर पेट्रोल भर के कहीं ऐसे ही घूम के वापस आ जाता हूँ तो दैट फ्यूल इज गोइंग टू बी कंज्यूम, वो वापस से आने वाला नहीं है। एट द सेम टाइम एट मेन सोर्स क्या था, दैट इज़ ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट। अगर पेट्रोलियम एक बार ख़त्म हो गया तो वो सोर्सेज वापस से मुझे मिलने वाला नहीं है। दैट्स वाई इट इज़ नॉन एज एन नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। द फॉसिल फ्यूल नॉन रिन्यूएबल हो जाएगा सोर्स ऑफ द एनर्जी, सो वी नीड टू कंजर्व देम। इफ वी वेर टू ए कंटिन्यू कंज्यूमिंग दिस सोर्स एज सच ए अलार्मिंग रेट, अगर पूरे वर्ल्ड में लिमिटेड रिजर्वियर्स वाले ये सोर्स को अगर मैं यूटिलाइज कर दूँ तो थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाएगा, तो वो ख़त्म होने के चांसेस ही है। सो सच अलार्मिंग रेट वी वुड सून रन आउट ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। एनर्जी ख़त्म हुई, सपोज पेट्रोल की प्राइस आप देख रहे हैं तो कंटिन्यूसली कभी डाउनफॉल नहीं होते, इट इज़ कंटिन्यूसली गोइंग टू इंक्रीज ओनली, इसके अंदर कभी भी डिक्रीज नहीं होता। इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस अल्टरनेट सोर्स ऑफ द एनर्जी वेर एक्सप्लोर्ड, बट वी कंटिन्यू टू बी ए लार्जली डिपेंडेंट ऑन ए फॉसिल फ्यूल फॉर मोस्ट ऑफ आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट। तो लेकिन हम ज़्यादा करके डिपेंड किसके पे है, तो फॉसिल फ्यूल पे ही डिपेंड है। नाउ आई विल गोइंग टू शो वन पाई चार्ट गिवन ऑन अ डायग्राम नंबर 14.1। पाई चार्ट शोड दैट मेजर सोर्स ऑफ द एनर्जी फॉर आवर रिक्वायरमेंट इन इंडिया। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो ये पाई चार्ट जो है वो इंडिया के बारे में बताता है। तो मैक्सिमम है दैट इज़ ए मोर देन नियरली 50% इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए कॉल। पेट्रोल की पैदाइश है और नेचुरल गैस जो बोलेंगे वो सेकंड नंबर पे आता है, दैट हैज़ बीन गिवन दिस पर्टिकुलर पार्ट। देन हाइड्रो मीन्स रिलेवेंट टू दी वाटर, तो पानी को बहुत ही ऊंची हाइट से छोड़ के दैट इज़ कॉल्ड है ना पोटेंशियल एनर्जी की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड है ना हाइड्रो एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी हमारे कंट्री में बहुत ही कम प्रपोर्शन में प्रोड्यूस किया जाता है, दैट इज़ दिस पर्टिकुलर पार्ट। ये बहुत ही छोटा पार्ट है जो हमने बहुत ही कम वे में यूज़ किया है अभी तक। एंड लास्ट इज़ अ विंड, इट इज़ अ वेरी स्मॉल पोर्शन विच इज़ लाइंग इन दिस पर्टिकुलर गैप, विंड एनर्जी वी आर यूज इन अ वेरी लेस प्रपोर्शन। ये जहाँ पे सी शोर हो वहाँ पे आपने शायद गुजरात के कच्छ और उस साइड पे जाओ तो वहाँ पे देखा जाता है। तमिलनाडु के अंदर इसका अच्छा खासा सेटअप लगा के रखा है जहाँ पे मैक्सिमम ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी हैज़ बीन प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ विंड एनर्जी। सो जो डेवलप्ड कंट्री है वो इसके पे डिपेंड है, दैट इज़ ए न्यूक्लियर। इंडिया का अंदर का जो मैक्सिमम प्रोडक्शन देखे तो 1 सेकेंड इज़ अ हाइड्रो, सेकेंड नंबर पे आता है। थर्ड इज़ अ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, फोर्थ इज़ अ न्यूक्लियर एंड वेरी लेस इज़ अ
विंड एनर्जी। तो सिस्टम में पहले कौन सा आएगा? कोल, देन सेकंड इज अ हाइड्रो, थर्ड इज अ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, फोर्थ इज अ न्यूक्लियर एंड लास्ट इज अ विंड। नाउ पीपल इज ट्राइंग मोर फॉर दिस रादर देन दैट। तो इसका प्रोपोर्शन इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट इज ट्राइंग इट्स लेवल बेस्ड, लेकिन उसके कुछ लिमिटेशन है, दैट विल सी इन दिस पर्टिकुलर पार्ट। हियर बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल हैज़ ए अदर डिसएडवांटेजेस टू। अगर कोई चीज़ जलाते हैं तो बट ऑब्वियस है कि कोई भी चीज़ को हम जब जलाएंगे तो साथ में कुछ ना कुछ बाय प्रोडक्ट तो प्रोड्यूस करेगी। नाउ हाइड्रोकार्बन करके एक चैप्टर हम यही केमिस्ट्री के पार्ट में पढ़ने वाले हैं, दैट इज कंटेनिंग सम इम्प्योरिटीज अलॉन्ग विथ दैट। तो कार्बन तो एक मेन पार्ट तो हो गया, उसके अलावा जो इम्प्योरिटीज़ होती है उसके अंदर होता है नाइट्रोजन, देन सल्फर। तो जब भी इसका कम्बशन होता है दैट इज गोइंग टू रिलीज ए कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज ए मस्ट, वो तो प्रोड्यूस होना ही है। सपोज अगर उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ के फॉर्म में नाइट्रोजन या सल्फर है, अगर सल्फर होगा तो सल्फर डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड या मोनोऑक्साइड बनाएगा विच इज़ अ पॉइजनस गैस। अगर नाइट्रोजन बनाएगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड टाइप के कंपाउंड बनाने का चांस होता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ गोइंग टू रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग ए एसिड रेन। ये जब भी एटमॉस्फेयर में रहेंगे तो जब रेनफॉल होगा तो इट इज कंबाइंड विद दैट वाटर, पानी के साथ जुड़ेंगे, एसिड रेन के लिए ये दो गैस रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं। ये नहीं नाइट्रोजन एंड सल्फर नहीं, लेकिन ऑक्साइड ऑफ दिस एलिमेंट, ऑक्साइड ऑफ दिस एलिमेंट, ये आपको थोड़ा याद रखना है यहाँ पे। ऑन बर्निंग फॉसिल फ्यूल आर एसिडिक ऑक्साइड। तो किसका एसिडिक हो गया? कार्बन का, नाइट्रोजन का और सल्फर के ऑक्साइड जो होते हैं नेचर में कैसे हो गए? एसिडिक। जितना एसिड हम एटमॉस्फेयर में रिलीज करेंगे ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ते जाएगा। सो दिस लीड्स टू ए एसिड रेन विच अफेक्ट्स आवर वाटर एंड सॉइल रिसोर्सेज। तो जो काम हम करेंगे उसका सीधा रेसिप्रोकेट होके हमें मिल जाता है। तो यहाँ पे भी यही चीज़ हो गई, दैट इज गोइंग टू डैमेज अवर इन्वायरमेंट। along with that in addition to the petroleum problem of the air pollution, तो हमें एनर्जी तो मिल गई लेकिन साथ में हमने बाय प्रोडक्ट में क्या हुआ? एयर पॉल्यूशन क्रिएट किया। नाउ रिकॉल द ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस लाइक ए कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आपको थोड़ा शॉर्ट में ब्रीफिंग कर दूँ तो ये एक ऐसा कंपाउंड है कि जो एक बार हीट एब्जॉर्ब करे फिर रिलीज नहीं करता। अब जब रिलीज नहीं करेगा तो जो ओजोन लेयर के अंदर का जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रपोर्शन 0.03 था, वहाँ से पहुँचा है 0.04। अगर ये 0.04 से थोड़ा भी प्रपोर्शन बढ़ता है देन इट इज़ गोइंग टू ग्रैब द सोलर एनर्जी ऑल्सो, एंड बिकॉज ऑफ दैट होल टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर इज गोइंग टू बी इंक्रीज। तो बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ अ वेरी वेरी हार्मफुल। तो जैसे जैसे इसका प्रपोर्शन इंक्रीज होगा इट इज़ गोइंग टू क्रिएट ए डैमेज टू दी नेचर। सो वी हैव टू बी ए वेरी कॉन्शियस। एंड ये पूरे वर्ल्ड का एक बर्निंग प्रॉब्लम है। डेवलप्ड जो नेशन है एंड जो ओजोन लेयर के अंदर डिप्लीशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, तो ये सब के अंदर ये तीन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और सल्फर कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। नाउ एक थिंक ओवर इट करके एक आपको छोटा सा यहाँ पे टॉपिक दिया गया है। हाउ वुड यू अवर लाइफ चेंज इफ़ यू वुड नो लॉन्गर गेट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। आप खाली सुबह से देख लीजिए कि आपके घर पे लाइट नहीं है तो योर लाइफ बिकम्स मिजरेबल। भाई बिकॉज आपके 80% इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट आप जो यूज़ कर रहे हो वो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। यू आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग ओनली। So because of that you are going to face a huge problem. The availability of the electrical energy to each individual in a country is one of the parameters to measure the growth of the country. अब जितनी एनर्जी जितना ज़्यादा कंट्री के पास प्रोड्यूस होगा तो यही पैरामीटर है कि कंट्री के अंदर ग्रोथ हो रहा है कि नहीं। सपोज मेरे पास बहुत सारे एनर्जी के रिसोर्सेज है तो मैं उसको अगर यूटिलाइज करता हूँ तो आई कैन गेट सम प्रोडक्ट, लेकिन अगर मेरे पास एनर्जी नहीं है तो मैं इंडस्ट्री डेवलप नहीं कर पाऊँगा। इंडस्ट्री डेवलप नहीं हुई तो कंट्री डेवलप नहीं हो पाएगी। सो इट इज़ हैविंग ए डायरेक्ट रिलेशन विद दैट पर्टिकुलर थिंग। कुछ बिजनेस आप आगे जाके पढ़ोगे कि जिसका डायरेक्टली रिलेशन होता है द प्रोडक्शन ऑफ दी सीमेंट। सीमेंट का प्रोडक्शन जितना ज़्यादा कंट्री उतनी डेवलप्ड होती है।
ऐसे ही बहुत सारे दूसरे रिसोर्सेज का बारे में आप पढ़ोगे, लेकिन ये पॉल्यूशन क्रिएट करता है तो उसके ऑप्शन में हमारे पास क्या है, तो वी हैव टू थिंक फॉर दैट पर्टिकुलर पार्ट. नाउ pollution caused by a burning of the fossil fuel can be somewhat reduced by increasing the efficiency of the combustion process and using a various techniques to reduce the escape of a harmful gases and ashes into the surrounding. तो ये जो harmful गैस जो प्रोड्यूस हो रहा है पैरेलली एंड एस जो प्रोड्यूस हो रही है इन द सराउंडिंग, ये दोनों को हमें रोकना है. Beside being used directly or a various purposes in gas, stoves and vehicle, do you know fossil fuel are the major fuels used for generating electricity? Fossil fuel सबसे ज़्यादा यूज होते हैं. Now let us produce some electricity at our own small plant in the class and see what goes into a producing our favorite form of the energy. अब एक एनर्जी का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बता रहा है कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. तो एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो हम सबसे पहले बात करेंगे छोटे से टरबाइन की कि टरबाइन कैसे प्रिपेयर करेंगे. तो टेक ए टेबल टेनिस बॉल एंड मेक ए 3 स्लिट्स इनटू इट. पुट सेमी सर्कुलर आधा जो पार्ट जैसा बताया प्लेन्स. कट ऑफ द मेटल शीट इनटू ए 3 स्लिट्स. पाइवोट द टेनिस बॉल on an axle through its center with a straight metal wire fixed to a rigid support. Ensure that the tennis ball rotate freely about the axle. Now convert a cycle dynamo to this. Convert a bulb in a series. Direct a jet water to a steam produce in a pressure cooker at the fins. What do you observe? तो यहाँ से एक प्रेशर कुकर है जहाँ पे मैंने अंदर पानी भर के रखा हुआ है. यहाँ से मैं इसको हीट दे रहा हूँ. ये आपको पता होगा यहाँ पे सी ट्यूब बनती है. तो वहाँ पे मैंने एक स्टीम पाइप लगा दिए. ये पाइप के नीचे मैंने टेबल टेनिस के बॉल के साथ एक मेटल के शीट लगा दिए और इसको एज ए एक्सल के फॉर्म में मैं घुमा रहा हूँ. जब ये रिवॉल्व होगा या रोटेट होगा तो व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन, ये रिवॉल्व करेगा तो इट इज प्रोड्यूस ए एनर्जी. ये एनर्जी को मैं स्टोर करूँगा डायनेमो के अंदर. डायनेमो इज नथिंग बट इंस्ट्रूमेंट विच इज हैविंग ए कैपेसिटी टू स्टोर द एनर्जी. ये यहाँ से कन्वर्ट होगा और जाएगा बल्ब में एंड बल्ब इज एबल टू ब्लो. ये ब्लो करेगा. सो यहाँ पे एक हीट एनर्जी का लाइट एनर्जी में मैंने कन्वर्ट किया. ड्यूरिंग दैट प्रोसेस जो पानी है उसका यूटिलाइज हुआ मैकेनिकल एनर्जी में. मैकेनिकल एनर्जी हैज़ बीन स्टोर्ड इन अ डायनेमो एंड इट हैज़ बीन गेट कन्वर्टेड इनटू ए इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हमने बल्ब के अंदर कर दिया कि जिसकी वजह से मुझे लाइट एनर्जी मिले. सो दिस कॉल्ड एज एन मॉडल टू डेमोन्स्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ द थर्मो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन. क्या बोलेंगे इसको? थर्मो मीन्स हीट का इलेक्ट्रिसिटी के अंदर प्रोडक्शन करना. हियर दिस अवर ए टर्बाइन फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. द सिंपलेस्ट टर्बाइन हैव वन मूविंग पार्ट. ए रोटर ब्लेड असेंबली किया जाएगा. मूविंग फ्लूइड एक्ट ऑन द ब्लेड टू स्पिन देम एंड इम्पार्ट एनर्जी ऑफ द रोटर. दस वी सी दैट ए बेसिकली वी नीड टू मूव द फैन. रोटर ब्लेड यूज करेंगे विथ ए स्पीड which would turn the shaft of the dynamo and convert mechanical energy. यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी हुई रोटेट करेगा तो into इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हुआ डायनेमो में. इलेक्ट्रिकल एनर्जी the form of the energy which has become necessary in today's scenario. So the various way in which this can be done depends upon the availability of these resources. We'll see how a various source of the energy can be a harness to run for the turbine and generate electricity into the following section. तो पहले हम सिंपल 2 पार्ट यहाँ पे चेक कर लेते हैं. वन इज कॉल्ड ना थर्मल पावर प्लांट. लार्ज अमाउंट ऑफ द फॉसिल फ्यूल आर बर्न एवरी डे इन पावर स्टेशन to heat up water to produce a steam.
विच फर्दर रन्स द टर्बाइन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो बहुत सारे बड़े जो टर्बाइन होते हैं उसको बाय हीट करके, वाटर को हीट करके वेपर के फॉर्म में उसको रोटेट किया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। तो ट्रांसमिशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज़ मोर एफिशिएंट दैन ट्रांसपोर्टिंग कोल। अगर मैं कोल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाऊँ, उससे अच्छा मैं वायरिंग से इलेक्ट्रिसिटी को पास करूँ, वो बहुत ईजी होगा। और पेट्रोलियम ओवर द सम डिस्टेंस, देयरफॉर मेनी थर्मल पावर प्लांट्स आर सेटअप। कहाँ पे लगाए जाएंगे? जहाँ पे मुझे कॉल और दूसरे ऑयल फील्ड्स मुझे नज़दीक हो, जहाँ पे से पेट्रोल, क्रूड या कॉल मुझे मिलता हो, वहीं पे मैं ये प्लांट लगाऊंगा, थर्मल पावर प्लांट। सो द टर्म थर्मल मीन्स क्या? हीट इज यूज सिंस फ्यूल इज अ बर्न टू प्रोड्यूस ए हीट एनर्जी विच इज कन्वर्टेड इनटू ए इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसका कन्वर्जन किसके अंदर होगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर। नाउ हाइड्रो पावर प्लांट, अनदर ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वॉज द KE। इसको शॉर्ट में लिखेंगे KE, दैट इज अ काइनेटिक एनर्जी विच यू यूज्ड टू लर्न इन स्टैंडर्ड 9 ऑफ फ्लोइंग वाटर इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर एट हाइट। अगर पानी बहुत ही हाइट पे है, ऊंचाई पे, तो मैं नीचे जो टर्बाइन है उसको रोटेट करवा सकता हूँ। तो हाइड्रो पावर प्लांट्स convert the potential energy of the falling water into electricity. Since there are a very few waterfalls which could be used as a source of potential energy, लेकिन हर एक जगह पे तो पानी इतने फ्लो से गिरेगा नहीं, तो लिमिटेड हो जाएंगे ये भी। तो हाइड्रो पावर प्लांट्स आर एसोसिएटेड विथ डैम। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? पानी को स्टोर करने का चालू किया, एंड दे हैड स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग डैम्स ऑन ए रिवर इन द लास्ट सेंचुरी। लार्ज नंबर ऑफ द डैम्स वेर बिल्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड में इसका सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन होने लगा। एज यू कैन सी फ्रॉम ए फिगर 14.1, ए क्वार्टर ऑफ द एनर्जी रिक्वायरमेंट इन इंडिया इज मीट बाय हाइड्रो पावर प्लांट। क्वार्टर मतलब 1/4, इतना तो हमें हाइड्रो पावर प्लांट से मिलता है। दैट वी हैव सीन इन दिस पाई चार्ट ऑल्सो ना, पाई चार्ट के अंदर से। तो वन क्वार्टर हो गया, ये 1/4 मतलब अराउंड 90%। तो ये येलो कलर का आपको दिख रहा होगा, हाइड्रो, डार्क येलो कलर का, दैट इज अ हाइड्रो। नाउ ये काम कैसे करता है? तो उसके डायग्राम यहाँ पे अच्छी तरह से दिए गए। ये एक रिजर्वियर है, यहाँ पे स्लज गेट लगाया जाता है, यहाँ से पानी को नीचे से छोड़ा जाता है फास्ट में। तो बिकॉज ऑफ दिस, ये कंटिन्यूसली फास्ट फ्लो की वजह से इसके गेट को खोला जाएगा। ये पानी की इतनी हाइट पे है, यहाँ से छोड़ा तो पानी फास्ट मूव करेगा। तो दिस टर्बाइन विल स्टार्ट रोटेटिंग। ये जनरेटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा और यहाँ पे पावर हाउस में स्टोर होके पावर लाइन से पास किया जाएगा। ये जो पानी है हम वापस से यूज़ कर सकेंगे, रिवर में छोड़ दिया जाता है। तो बिकॉज ऑफ दिस इट इज़ स्कीमेटिक व्यू है हाइड्रो पावर प्लांट का। तो इसके अंदर क्या क्या यूज़ हुआ? रिजर्वियर। तो चेक डैम हमें बनाना पड़ेगा टू स्टॉप दिस वाटर फ्लो। ये बनने के बाद यहाँ पे स्लज गेट्स लगाए, इसको ओपन करेंगे, टरबाइन को रिवॉल्व कराएंगे, रोटेट कराएंगे। रोटेट कराने के बाद जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वो जनरेटर के अंदर स्टोर की जाएगी। जनरेटर के थ्रू पावर हाउस के अंदर लेके जाएंगे और यहाँ से हम पास कर सकते हैं। तो जहाँ पे रिवर में मैक्स वाटर होगा वहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। सो इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ए हाइडल इलेक्ट्रिसिटी, हाई राइज डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द river to obstruct the flow of the water and thereby collect water in a large reservoir. So water level rise in the process, the kinetic energy of the flowing water gets transformed into a potential energy. इसमें जाएगा ये potential energy में। The water from the high level in the dams is carried through a pipe to the turbine at the bottom of the dam. ये नीचे की तरफ लगाया हुआ है जहाँ पे इसको लेके जाएंगे। Since the water is the reservoir, would be a refill each time it rain. हर बार बारिश गिरेगी तो आगे का जो पार्ट है वहाँ पे पानी भरते ही जाएगा ना। So it rains, that is a hydro. Hydro means water. Power is a renewable source of energy. तो ये आपको याद रखना है कि हाइड्रो पावर प्लांट जो है वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। सो वी वुड नॉट हैव टू वरी अबाउट ए
hydroelectricity source is getting used up by these fossil fuel would get finished one day. तो ये भी तो फिनिश होने के चांसेस है. बट अगर मैं कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ एक बड़ा सा डैम, हैव अ सर्टेन प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ इट, द डैम कैन कंस्ट्रक्टेड ओनली लिमिटेड नंबर. आप हर जगह तो चेक डैम नहीं लगा सकते. उसके साथ साथ दूसरे प्रॉब्लम्स भी तो होते हैं कि आजू बाजू के सराउंडिंग के लोगों को खेती के लिए पानी ना मिलना, या वहाँ पे जो बस्ती पहले से एकोमोडेट होके या रह रही है उनको भी हमें माइग्रेट करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा. तो प्लेंटी ऑफ द प्रॉब्लम्स इज गोइंग टू एराइज टू कंस्ट्रक्ट दिस चेक डैम. तो बहुत सारी ज़मीन या लैंड भी वेस्ट में जाता है. तो लिमिटेड नंबर ऑफ द प्लेसेस प्रिफरेबली इन ए हिली टेरेन्स, लार्ज एरिया ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड and human habitation are to be a sacrifice as they get submerged. So large ecosystems are destroyed when submerged under the water in dams. बहुत सारा जो आजू बाजू के लोग होते हैं उनको वहाँ से या इकोसिस्टम को भी हम डैमेज करते हैं. वेजिटेशन यानी प्लांट्स जो वहाँ पे है, विच इज़ ए सबमर्ज रूट्स अंडर ए anaerobic condition and gives rise to a large amount of methane which is also a greenhouse gas. तो यहाँ पे भी मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है. मीथेन गैस जो है that is also one of the gas which is responsible for global warming. It creates the problem of satisfactory rehabilitation of displaced people. तो opposition to the construction of a Tehri dam of the river Ganga, जो गंगा नदी में हमने एक डैम बनाया था, नाम क्या था उसका, टेहरी डैम. ये इसकी में पूछ सकते हैं. रिवर गंगा. एक दूसरा बनाया है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, वो कहाँ पे लगाया हमने, नर्मदा में. यहाँ पे भी बहुत ही बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट होते थे. देन वी आर ट्राई टू कन्विंस द पीपल एंड वी आर एबल टू कंस्ट्रक्ट दैट पर्टिकुलर थिंग्स. तो जो नेचर के साथ जब हम चेक डैम बनाते हैं तो नेचर के साथ और वहाँ की जो हैबिटेशन है, ह्यूमन बीइंग है या इन्वायरमेंट है, उसको जो डैमेज हो रहा है वो एक सबसे बड़ा इसका भी प्रॉब्लम है. इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू सी अबाउट द इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी बाय यूजिंग ए कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. बिफोर दैट आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू रीड दिस पार्ट वेरी केयरफुली. यू हैव टू रिमेंबर दिस डेटा वेरी केयरफुली सो यू आर एबल टू राइट डाउन ए शॉर्ट नोट. इसमें से 3 मार्क का शॉर्ट नोट पूछा जाता है. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अगर आपको कोई पार्ट में कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी ऑन माई मोबाइल नंबर 9638229462. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस. होप विल मीट वेरी शॉर्टली. जब भी हम मिलेंगे विल ट्राई टू फिनिश दिस सेम टॉपिक्स वंस अगेन, सो you are able to ask me the doubts also pertaining to this particular part. Thank you very much.